क्विज 8 सेट फॉर बिहार हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द बृहद संहिता ऑफ वराहमिहिर, a 6th century sea text, provides geographical and astrological insight. What specific ancient name for a riverine tract or region within or bordering present-day Bihar is mentioned in this text, possibly associated with a particular agricultural product or tribal group? So what does it mean? It means the answer is Kikat. Kikat region. This region mentioned in Vedic and later text is often linked to non-Aryan groups and is sometimes placed in or near South Bihar. 2. Archaeological findings in certain parts of Bihar have revealed unusual burial practices such as flexed burials with orchestra bones that do not neatly fit into established Neolithic or Chalcolithic patterns. Which specific site has yielded notable evidence of such potentially transitional or unique funerary rites? तो ये कहाँ पे मिला है? ये मतलब अनयूजुअल है बेरियल प्रैक्टिसेस, मतलब जो बेसिकली न्योलिथिक और चाल्कोलिथिक पैटर्न है उससे हट के। तो ये मिला कहाँ है? ताराडी एक्सिबिशंस, ताराडी में ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूरिंग द पाल डायनेस्टी डिक्लाइन सेवरल स्मॉलर लोकल रूलिंग फैमिलीज इमर्ज्ड. Can you name a relatively obscure dynasty that held sway over a limited territory in what is now North Bihar during the 11th or 12th century CE, often mentioned in local traditions or minor inscriptions? तो ये कौन थे? The Karnatas of Mithila. While relatively more known than truly obscure, their early localized phase before consolidating power could fit this description depending on the specific time frame considered. तो ये कौन थे? Karnatas of Mithila. Next, the Vajrayana Buddhist tantras that flourished in Bihar during the Pal era often involved complex ritual and worship of a specific deity. Can you name a relatively lesser known Vajrayana deity distinct from the more common Buddhas and Bodhisattvas that is specifically associated with certain tantric practices prevalent in monastic universities of Bihar? तो ये कौन थे? जंगुली. ठीक है, is the deity associated with protection from poison with textual and artistic evidence. ये डिनोट किए जाते हैं स्नेक्स के द्वारा. ऑफन डिपिक्टेड विद स्नेक्स इज फाउंड इन पाल एरा आर्ट एंड तांत्रिक टेक्स्ट एसोसिएटेड विद द रीजन. नेक्स्ट, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस लोकल शिफ्टेंस इन बिहार. तो कहाँ का डायनेस्टी बताना है तुम्हें? शाहाबाद रीजन, जो कि मॉडर्न भोजपुर है, रोहतास, बक्सर, हु पोज्ड ए परसिस्टेंस चैलेंज टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुल्तान अथॉरिटी. तो ये कौन थे? तो राजपूत या ट्राइबल लीडर्स. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कुछ सेट में. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्राइबल टेरिटरीज इन बिहार वाज ऑफन इनडायरेक्ट. व्हाट वाज ए स्पेसिफिक टाइटल और डेजिग्नेशन गिवन टू लोकल इंटरमीडिएट्स और चीफ्स who were responsible for maintaining order and collecting tribute from those areas in behalf of Mughal authorities? तो इनको कहा जाता था राय और राजा. ठीक है, ये इनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी था लेकिन मुगल का सुजरेंटी था इनके अंदर, मतलब थे मुगल के अंदर बट इनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिला पड़ा था. 7. The early European factories in Bihar, besides trading communities, also engaged in other activities. What was a specific, often less documented secondary activity undertaken by the English or Dutch factories in cities like Patna that contributed to their influence? तो ये क्या था? They also acted as informal courts of justice for local dispute involving Europeans and their dependents. This extraterrestrial jurisdiction was a source of friction and influence. मतलब ये लोग क्या करते थे? They were forming informal courts of justice. Now, the tribal movements in Bihar during the British Raj sometimes had messianic or revitalistic aspects. Can you recall the name of a lesser known tribal leader or movement in the late 19th or early 20th century that combined religious revivalism with a call for social and political autonomy, distinct from the better known movements of Birsa Munda or the Tana Bhagats? तो ये क्या था? ये बस लोकलाइज मूवमेंट थे, जैसे जिसका रीजनल रिकॉर्ड्स ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, बस कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स हुए करते थे जो ऐसा किया जाता था जो कि सोशल और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का डिमांड करते थे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्ली 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बिहार सॉ द इमर्जेंस ऑफ वेरियस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिनके बारे में बताया जाए. तो इसके बारे में भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लोकल था. स्पेसिफिक लोकल स्टूडेंट यूनियंस थे और लिटरेरी सोसाइटीज़ थे.
कुछ रीजनल आर्काइव्स में इनके नाम मिलते हैं, ठीक है, बट मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट हिस्ट्री के लिए इसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रेजिस्टेंस इन बिहार समटाइम्स टुक यूनिक लोकल फॉर्म। कैन यू रिकॉल a specific instance of a non-violent protest टैक्टिक? तो टैक्टिक्स क्या था? हमें पता है कि पैदल गवर्नमेंट चलाना था, पैदल पोस्टल सिस्टम चलाना था तो डिफाई ब्रिटिश कंट्रोल। याद करो पैदल गवर्नमेंट कहाँ पे चल रहा था? सारन में। सिमिलरली पैदल पोस्टल सिस्टम्स भी चल रहे थे, ठीक है। दिस वॉज ए लेस नोन बट सिग्निफिकेंट एक्ट ऑफ डिफाइंस इन सम एरियाज। 11, पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप वॉज मार्क्ड बाय कास्ट डायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था? कास्ट डायनेमिक्स चल रहे थे। तो क्या कोई ऐसा स्पेशल कास्ट फेडरेशन आया था लोकल लेवल पे? तो बेसिकली था, लोकलाइज इन्फ्लुएंस था उनका, और बहुत सारे कास्ट एसोसिएशन आए थे इसमें, ठीक है। ये बस मैं ऐसे ही नोट्स को इन फॉर्म ऑफ ऑप्शंस बनाया हूँ, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल यू आर राइटिंग बीपीएससी मेंस, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ मैथिली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इज लेस वाइडली नोन देन other Indian miniature styles. Can you recall a specific theme or subject matter that was particularly popular in early Maithili manuscript illustration often found in text other than well-known रामायण और भागवत पुराण? तो इसमें क्या था कि बेसिकली वो लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट बनाते थे, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी था और इनके मैन्युस्क्रिप्ट में ये दिखता था। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स इन बिहार समटाइम्स कंटेन इंस्क्रिप्शन दैट सेट लाइट ऑन द डेली लाइफ ऑफ द मॉन्क्स and the administration of the monasteries. Can you recall a specific term used in this inscription to refer to a particular monastic official or administrative role within the संघ of a major Bihari monastery? तो इसको क्या बोलते थे? कर्मदान, ठीक है। ये ऑफिशियल क्या करता था? मोनेस्ट्री का डेली अफेयर्स देखता था, सो इनको क्या बोला जाता था? कर्मदान। नेक्स्ट, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट साइट्स इन बिहार समटाइम्स फीचर symbols or motifs whose meaning is now lost or highly debated. Can you recall a specific abstract symbol or geometric pattern found in these paintings that does not have a clear parallel in other Indian rock art tradition and whose interpretation remains elusive? तो ये क्या था? ये कहा जाता है कुछ बिहारी साइट्स पे ऐसे मिले हैं लैब्रिंथीन या मेज लाइक डिज़ाइन मिला है, ठीक है। दिस आर यूनिक टू सर्टेन बिहार साइट्स। नेक्स्ट, legal tradition of Mithila produced commentaries on various aspects of Hindu law. Can you name a relatively obscure legal commentator from the Mithila school other than the well-known Vachaspati Mishra or Chandeshwar whose work focused on a specific aspect of व्यवहार? तो ये कौन थे? तो बेसिकली कुछ लोकल कमेंटेटर्स थे, ठीक है, जिनका मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म मिलता है, बट मिथिला स्कूल में बहुत रिच ट्रेडिशन था लीगल स्कॉलरशिप का। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आई हैव रिटन दिस पॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ नोट्स ताकि बीपीएससी के किसी क्वेश्चंस में यूज़ करे जा सके। सो बेसिकली आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू ए क्वेश्चन ताकि आप समझ सको कि हाँ चलो ये चीज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेक्शन बिटवीन अर्ली सूफीज एंड लोकल कम्युनिटीज इन बिहार समटाइम्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सिंक्रेटिक श्राइन्स और प्रैक्टिसेस। सो व्हाट वाज द लोकल ट्रेडिशन? नेम एनीवन दैट एग्जिबिट्स क्लियर सिंक्रेटिक एलिमेंट्स blending Sufi and indigenous devotional practice perhaps associated with lesser known Sufi figure. तो क्या था कि बहुत जगह पे लोकल मज़ार्स और श्राइन्स खुलने लगे, ठीक है, ऑफन विथ यूनिक लोकल रिचुअल्स। सच सिंक्रेटिक साइट्स एग्जिस्ट थ्रू आउट इंडिया एंड लाइकली इन बिहार एज वेल, ऑफन विथ लोकलाइज्ड हिस्ट्रीज। मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से मज़ार खोलने लगे और ये बहुत जगह पे आपको अभी भी दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि कौन सा मोमेंट कहा जा रहा है कि बिहारी लैंग्वेज के लिए बोला गया था अदर देन हिंदी सच एस मैथिली, भोजपुरी और मगही इन द डिकेड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस? तो कोई स्पेसिफिक मोमेंट ऐसा तो था, जैसे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद हिंदी पे, अंजुमन तारीख़ उर्दू फोकस्ड ऑन उर्दू। तो इसी तरह कुछ लिंग्विस्टिक एसोसिएशंस आए थे जो कि मैथिली, भोजपुरी और मगही को रीजनल लेवल पे वो कर रहे थे, लिंग्विस्टिक एक्टिविज्म के तरह प्ले कर रहे थे। नेक्स्ट, अर्ली कोऑपरेटिव मूवमेंट इन बिहार, क्या क्या चैलेंजेस थे उसमें? तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, रेगुलेशन नहीं था, वेल्दी लैंड ओनर्स थे इसमें और मनी लैंडर्स जो कि क्रेडिट का एक्सेस अपने कंट्रोल में रखते थे, और बहुत सारा इलिटरेसी और अवेयरनेस की वजह से भी ये नहीं मिल पाता था लोगों को। नेक्स्ट,
आर्किटेक्चरल लैंडस्केप ऑफ बिहार ऑल्सो इंक्लूड सेक्युलर स्ट्रक्चर फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, तो कोई एक स्पेशल नाम बताना है। ठीक है, जैसे कारावन सराय, ए मार्केट कम्प्लेक्स और ए कम्युनिटी हॉल, जो कि बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ओल्ड मार्केट टाउन्स हैं और कैरावन स्टॉप्स हैं जिसका स्ट्रक्चर पार्शियली सर्वाइव किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्टोरिकल मेमोरी ऑफ लोकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इन बिहार इज ऑफन डोमिनेटेड बाय लार्जर अपराइजिंग। ठीक है, कोई लोकल अपराइजिंग का नाम, तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट नहीं करा गया है। ठीक है, उतना। थैंक यू।